Hello friends, welcome back to our YouTube channel. We are back here with a new video. This video is on Form 16. Generally, the salaried person have so many doubts about Form 16. What is Form 16? What does Form 16 contains? Who is mandated by income tax law to provide Form 16? So we have tried to resolve all the doubts in this video. So let's start. What is Form 16? Form 16 is a certificate issued by the employer to employee containing details of how much tax the employer has deducted and when it was submitted to the income tax department. So Form 16 is nothing but the basic details of your emoluments, your salary, compensation, what has been paid by your employer, and the amount of tax deducted by the employer on your salary payment, on your remuneration, and when the same was submitted to the income tax department. It is worth noting that if you have switched jobs during the year or worked with different employers at the same time in the same financial year and tax has been deducted by all the employers, you must obtain a separate Form 16 for each one of them. So आपको हर एक एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 लेना है जिस भी एम्प्लॉयर के साथ आपने काम किया है, अगर उस एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स डिडक्ट किया है तो. However, if your employer did not deduct any tax at source from your salary, considering your income for the year below the tax exemption limit, they may not issue Form 16. तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर एम्प्लॉयर ने टैक्स नहीं काटा है तो दे मे नॉट इशू फॉर्म 16. ऐसा लॉ में मैंडेट नहीं है कि वो इशू नहीं करेंगे अगर टैक्स नहीं काटा है. अगर टैक्स काटा है तो मैंडेटरी है इशू करना. अगर टैक्स नहीं काटा है तो दे मे इशू विद निल टैक्स डिडक्टेड और मे नॉट इशू. उस केस में उनकी उनके लिए वॉलेंटरी हो जाएगा फॉर्म 16 इशू करना. तो फॉर्म 16 की एलिजिबिलिटी क्या है? एनी सैलरीड पर्सन whose tax has been deducted by the employer at any at the source is eligible to get Form 16, irrespective of the fact whether your income fall under the basic tax exemption limit or not. The employer must issue Form 16 if they have deducted tax at source. मान लीजिए मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए है, वो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, मेरे ऊपर कोई भी टैक्स नहीं बनता है, तब भी एम्प्लॉयर अगर मेरी सैलरी पर टैक्स काटता है 1,000 2,000 कुछ भी अमाउंट का, तो उसके लिए मैंडेटरी है मुझे फॉर्म 16 इशू करना. फॉर्म 16 की जरूरत क्या है भाई, क्यों इशू करें? आप एम्प्लॉयर आपसे पूछ सकता है भाई क्यों चाहिए आपको फॉर्म 16. फॉर्म 16 हेल्प्स यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न. It is proof that the employer has submitted the taxes deducted to the authorities that that is deducted as TDS from salary. तो उसने जो भी TDS आपसे काटा है वो उसने इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास जमा किया है. इसका प्रूफ है फॉर्म 16. यही आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में हेल्प करेगा. अच्छा, इश्यू कब होगा फॉर्म 16? Employer is required to issue Form 16 on or before May 31st of the assessment year, which gives you enough time to file your income tax return before the due date. Assessment year का मतलब क्या है? जो जिस साल में आपने इनकम अर्न करी है उसके अगले साल को असेसमेंट ईयर बोलते हैं. तो जिस साल में, मान लीजिए कि आपकी इनकम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की हम बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 क्या है? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का पीरियड, फ्रॉम 1 अप्रैल 23 टू मार्च 31 24. तो उसके लिए असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 24 टू 31 मार्च 25. तो अगर मैं अपनी 23-24 की इनकम की बात कर रहा हूं तो उसके लिए फॉर्म 16 इशू करने की लास्ट डेट क्या हुई? नेक्स्ट ईयर की 31 में, यानी कि 31 मई 2024. फॉर्म 16 के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि फॉर्म 16 में क्या क्या आता है? तो फॉर्म 16 इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी. तो पार्ट ए में क्या है?
Part A of Form 16 has basic details of the employer and employee, such as name of the employee, address of the employee, PAN of employee, name of the employer, address of the employer, PAN of the employer, address of the employer. It also contains details of how much tax was deducted, date when the amount was deposited with the central government, and details of चालान issued by the government. ये सब चीजें इसलिए इसमें डाली गई हैं जिससे कि आपका टैक्स एम्प्लॉयर जमा कर रहा है या नहीं, इसका आप ट्रैक रख सकें, इसको आप चेक कर सकें कोई उसने आपको जो फॉर्म 16 इशू किया है उसमें कोई फॉर्ज चालान, कोई गलत चालान नंबर तो नहीं दे दिया। फॉर्म 16 का पार्ट बी क्या है? Part B of Form 16 contains detailed breakdown of how your tax was computed, considering the investment declaration you made at the beginning of the financial year and the proof of investment submitted afterwards. It also includes details of how or other allowances that your employer provided to you, which may be necessary for tax computation purpose. Any other details such as house rent, medical bill, EMI paid towards your home loan, donations exempted from taxation that you may have furnished to the employer. तो ये जो डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स आपके फॉर्म 16 पार्ट बी में जब भी दिखेंगी जब आपने अपने एम्प्लॉयर को इनकी डिटेल्स दी होगी। इन केस यू हैवंट फर्निश्ड द डिटेल्स टू द एम्प्लॉयर, द सेम विल नॉट अपीयर इन योर फॉर्म 16। तो क्या डिटेल्स हो गई? ग्रॉस सैलरी, सेक्शन 10 के अलाउंसेस, we will make a separate video on the allowances which are exempt under section 10। हम सारा कवर करेंगे उस वीडियो में कि सेक्शन 10 में कौन कौन से अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं। एम्प्लॉयमेंट टैक्स डिडक्शंस जो कि 80C में है, और सारे डिडक्शंस 80E, 80G, 80TTA, 80GG, सारे डिडक्शंस जो भी आप दिए हैं आपने अपने एम्प्लॉयर को, वो सब आपके फॉर्म 16 पार्ट बी में रिफ्लेक्ट करेंगे। आपकी टोटल इनकम क्या होती है? आपकी ग्रॉस सैलरी, उसमें से आपके एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस माइनस कर दीजिए, उसके ऊपर उसके बाद जो इनकम अराइव एट करते हैं उसको बोलते हैं टोटल इनकम। तो उसके ऊपर टैक्स कितना बनता है, कितना सेस बनता है, एजुकेशन सेस, स्वच्छ भारत सेस, जो भी सेस सरकार लगा रही है। अगर कोई रिबेट आपको मिल रहा है, रिबेट मिलता है सेक्शन 87A में, उसके बाद अगर कोई सरचार्ज में लग रहा है तो वो ऐड हो जाएगा। रिबेट लेस होता है, सरचार्ज ऐड होता है। तो ये हैं डिटेल्ड कंटेंट्स ऑफ फॉर्म 16। अब बेनिफिट्स क्या है फॉर्म 16 के? फॉर्म 16 का यूजेस क्या है? एक तरीके से फॉर्म 16 works as proof that employer or deductor has deposited the TDS amount with a central government account and has committed any fraud or siphoned of any money for any other use। यानी कि उसने कोई पैसा गलत यूज नहीं किया है, आपका का सारा पैसा जो उसने आपसे काटा था वो सरकार के पास जमा कर दिया है। इस बेनिफिट के साथ साथ और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या? फॉर्म 16 ऑल्सो वर्क्स एज योर इनकम फ्रॉम सैलरी स्टेटमेंट विच कुड बी गिवन टू वेरियस अथॉरिटीज कंपनीज ऑन डिमांड। अब जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं, आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो उस केस में आपका पिछला सीटीसी क्या था उसके प्रूफ के लिए कंपनी में आस्क के अपना फॉर्म 16 शो करिए। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में हेल्प करता है, आपके इनकम का प्रूफ बनता है, डॉक्यूमेंट्स स्टेटिंग दैट हाउ योर टैक्स वाज कंप्यूटेड एंड चेक एनी एनोमलीज, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है आपके टैक्स की कंप्यूटेशन में, एक ये बेस डॉक्यूमेंट बनेगा। वन प्लेस डॉक्यूमेंट टू चेक ऑल योर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स, आपने कौन कौन से टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स किए थे वो सारे एक जगह आ जाएंगे फॉर्म 16 में। आप अगर कहीं पर लोन लेने जाते हैं तो वो भी आपके लास्ट 3 इयर्स की आईटीआर या फॉर्म 16 मांगते हैं। वीजा लेना है तो चाहिए होता है, जॉब स्विच करना है तो चाहिए। सिंस द डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू टैक्स क्रेडिट यू कैन चेक फॉर एनी ओवर पेड टैक्सेस विच विल हेल्प यू क्लेम रिफंड इफ एनी। क्योंकि ये टैक्स क्रेडिट मतलब आपका जो टैक्स सरकार के पास जमा हुआ है उससे रिलेटेड है, तो इसीलिए इसमें सारे टैक्सेस दिखते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयर ने आपका ज्यादा टैक्स काट के जमा कर दिया है तो आप फॉर्म 16 के बेसिस पर रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
अच्छा, फॉर्म 16 मिलेगा कैसे? Form 16 is the TDS certificate issued by your employer when they deduct TDS. When an employer deducts TDS on salary, Income Tax Act requires a certificate to be issued by the employer where the tax details where the details of tax deducted and deposited are certified. It is mandatory for employer to who has deducted TDS to issue Form 16. तो जैसे हमने पहले बताया कि अगर उसने टैक्स काटा है तो वो मैंडेटरी आपको Form 16 इशू करेगा, लेकिन अगर उसने टैक्स नहीं काटा है तो फिर ऑप्शन है कि वो इशू कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। कोई लॉ में मैंडेट नहीं है उस सिचुएशन में जब उसने टैक्स नहीं काटा है। In case you have lost your Form 16, you can always ask for a duplicate copy from the employer. क्या फॉर्म 16 मैंडेटरी है जैसे हमने ऊपर बात करी? यस इट इज। क्यों? क्योंकि इससे आप अपनी डिस्क्रिपेंसीज चेक कर सकते हो कि ज्यादा टैक्स तो नहीं कटा, टैक्स की कंप्यूटेशन चेक कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो कि सारा का सारा टैक्स जो कटा था वो डिस्चार्ज कर दिया है एम्प्लॉयर ने, कोई रिफंड बनता है तो वो क्लेम कर सकते हो। क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो बिना फॉर्म 16 के? यस, आप फाइल तो कर सकते हो, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसीजर है। आपको अपनी सारी सैलरी स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे, सारी चीजों की कंप्यूटेशन खुद से करनी पड़ेगी, आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ डालने पड़ेंगे, तो इट विल बी अ लेंथी प्रोसेस, इट विल बी अ कमर्सम प्रोसेस। तो इसीलिए इट इज नॉट एडवाइजेबल टू फाइल योर रिटर्न विदाउट फॉर्म 16। आपको अगर अपनी रिटर्न फाइल करनी है और आपका अगर टीडीएस कटा है तो यू शुड आस्क फ्रॉम योर एम्प्लॉयर for your Form 16. What to do if the employer deducts TDS but Form 16 has not been provided? अब आप क्या करोगे अगर फॉर्म 16 देने से मना कर देता है एम्प्लॉयर? तो एम्प्लॉयर के ऊपर लॉ का मैंडेट है कि इफ ही हैज डिडक्टेड टैक्स तो उसको फॉर्म 16 आपको इशू करना है। All employers in India must issue Form 16 in case tax deducted has been deducted at source. You can request your employer to issue your Form 16. You can cross-check if your employer has deposited the TDS with central government account by going to the Traces website and downloading your Form 16. Form 26AS. आजकल Form 26AS के साथ साथ आप अपना टोटल इनकम स्टेटमेंट, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, TIS और AIS जैसे हम बोलते हैं। इन केस द एम्प्लॉयर हैज नॉट डिपॉजिटेड द टैक्स, एम्प्लॉयर ने आपसे टैक्स काट लिया लेकिन जमा नहीं किया, अब क्या करोगे? रिटर्न फाइल करने का टाइम आ गया। एम्प्लॉयर से फॉलो अप करते रहो, लेकिन ओनस इसका आपके ऊपर है, सिंस इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, सो यू हैव टू बियर द कोइंसिडेंस, और आपको टैक्स जमा कर देना है इन द मीन टाइम। लेकिन आप अपने एम्प्लॉयर से क्लेम कर सकते हो, फॉलो अप कर सकते हो, पैसा वापस ले सकते हो। If the employer has deposited the tax but still has not issued Form 16 to you, go back to the previous step. क्या है previous step? सारी चीजें चेक करो, कंप्यूटेशंस, अपने सैलरी स्टेटमेंट्स, अपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स, उन सब की डिटेल डालो और उसके बेसिस पर अपना रिटर्न फाइल कर दो। इट इज अ टीडियस प्रोसेस बट इट विल हेल्प यू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न ऑन टाइम, क्योंकि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करी तो इंटरेस्ट और पेनल्टी आपके ऊपर आ जाएगा। फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न इज वन ऑफ द most important thing you need to do, making Form 16 a prerequisite. As one of the most important tax form, Form 16 contains most of the information required to prepare an income tax return in India. With its different components, Form 16 enables you to streamline the processes for filing your ITR. It is therefore very important to understand Form 16 and its intricacies carefully. तो फॉर्म 16 को समझना, चेक करना, जो एम्प्लॉयर ने इशू किया है वो ठीक है या नहीं, इट इज वेरी मैंडेटरी फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। सो यू मस्ट चेक योर फॉर्म 16 when your employer provides it to you, जिससे कि आप ये पता लगा सकें कि आपके फॉर्म 16 में और आपको जो सैलरी एक्चुअली में मिली है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ITR फाइल करने से पहले एक बार आपको अपना फॉर्म 16 थॉरोली चेक कर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, दिस इज अवर होल वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम फॉर्म 16B, फॉर्म 16C, फॉर्म 16D, फॉर्म 16E, फॉर्म 27D, वो सब डिस्कस करेंगे इन सक्सेसिव पार्ट्स। ये आगे आने वाली वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आज के टाइम में रेंट के ऊपर भी TDS
एम्प्लॉय को काटना मैंडेटरी हो गया है अगर एम्प्लॉय 50,000 से ऊपर की रेंट देता है। चलिए हम इसका डिस्कशन डिटेल में बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज subscribe our channel. Please share if you like our videos. We will be sharing our next video very soon. It will be on Form 16B, C, D, E, 27T. Thank you very much.